surrounding can be classified as pure substances and mixtures. A mixture is a combination of two or more substances which are not chemically the same and do not chemically react together. A mixture has the same properties as that of its component elements and can be separated by physical means. In a mixture of sugar and sand, even if we increase the volume of sugar or sand, the mixture remains the same. So it implies that in a mixture the components can be present in any proportions. When we dissolve common salt in a glass of water, we will obtain salt solution. Similarly, put some mud in a glass containing water and stir it well. We will obtain a mixture with the solid particles of mud dispersed in water. By carefully observing, you will find that in common salt solution, no salt particles settle down to the bottom of the glass. But in the glass containing muddy water, some solid particles settle down to the bottom of the glass. This explains that mixtures have different compositions. Accordingly, mixtures can be classified as homogeneous and heterogeneous. A homogeneous mixture has the same uniform appearance and composition throughout. Many homogeneous mixtures are commonly referred to as solutions. A solution is a mixture of two or more substances in a single phase. The substance in the largest amount is called solvent and the substance in the smallest amount is called solute. Now, consider the case of the common salt solution we have prepared. Here, water is the solvent and salt is the solute. Homogeneous solutions are classified as different types based on the solvent and the solute. 1. Liquid in liquid solution. 2. Solid in liquid solution. 3. Gas in liquid solution. In a solution of vinegar in water, both the solvent and solute are liquids, hence it is a liquid in liquid solution. In the case of common salt solution, it is a solid in liquid solution. The best example of gas in liquid solution is soda water. Soda water contains carbon dioxide gas. Let's understand heterogeneous solutions. Suspensions and colloids are heterogeneous mixtures. A suspension is a mixture of large particles. The size of the particles in a suspension is of the order of 10 to the power of -5 centimeters or larger. In a suspension, the solute particles do not dissolve, but they are suspended throughout the solvent. The muddy water which we prepared is a suspension. Colloids are also heterogeneous mixtures, but they appear like a homogeneous mixture. Milk is a good example of colloids. The particle size in colloids is smaller than 10 to the power of -5 centimeters. In colloids, the particles are uniformly distributed throughout the solution. Colloidal particles cannot be seen with the naked eye because of their small size, but their presence can be observed with the help of an ultramicroscope or an electron microscope. What is the effect of light in homogeneous and heterogeneous mixtures? Let us understand how light affects a colloidal solution. When egg albumin is taken in a glass beaker and some water is added to it, we get a colloidal solution of egg albumin. If we were to shine a beam of light from a torch through the beaker, the light is scattered by the colloidal particles and the path of light can therefore be observed. The light scattering effect. In the case of a suspension, light does not pass through it. In a true solution of salt in water, we will not see the path of light as there is little scattering of light. Things to remember. Mixtures are composed of variable proportions of different substances without chemical bonding and have the same properties as that of its component elements. Homogeneous mixtures have the same uniform composition and appearance throughout, whereas heterogeneous mixtures consist of visibly different substances or phases. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances, and the substance present in the largest amount is called solvent, and that present in the smallest amount is called the solute.
Suspensions are a heterogeneous mixture of large particles on the order of 10 to the power of -5, in which the solute particles are suspended throughout the solvent. Colloids are heterogeneous mixtures in which the particles are uniformly distributed throughout the solution and the particle size is smaller than 10 to the power of -5 centimeters. The light scattering effect shown by particles in a colloid is known as Tyndall effect. देखो कि जैसे मान लो कि मेरे पास मिल्क प्लस वाटर, ठीक है, मिल्क प्लस वाटर, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएगा, तो तुम बोलोगे मिक्सचर। इसी चीज को कल हम एक बार बता चुके, फिर एक बार बता रहे, है ना। और इसमें जो है हम लोग का, मान लेते हैं मिल्क है 1 और वाटर है 2, इस रेशियो में मिला हुआ है, रेशियो में मिला हुआ है। ये क्या है इसका, ये इसका क्या है, ये अनुपात है, मिश्रण में जो मिला हुआ है ना मिल्क एंड वाटर, उसका रेशियो है मिल्क एंड वाटर का। अब अगर हम बोले कि दोनों मिला करके, ये दोनों मिला करके जो मिक्सचर बन रहा है वो 1 लीटर का है, ये दोनों मिलाकर जो मिक्सचर बन रहा है वो कितना है, वो 1 लीटर का। अगर हम तुमको ये बोले कि इस 1 लीटर में से हम हाफ लीटर, ठीक है, 1 लीटर में से 500 ml, आधा जो है, आधा केजी हम निकाल लिए, 1 लीटर में से हाफ लीटर हम निकाल लिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो इस हाफ ml में भी है ना, इस हाफ ml में भी मिल्क एंड वाटर 1:2 के रेशियो में रहेगा, और जो रिमेनिंग मेरे पास रहा, तो रिमेनिंग कितना बचा, तो फिर बोलोगे हाफ लीटर ही, है ना, हाफ लीटर ही बचा मेरे पास, उसमें भी मिल्क और वाटर 1:2 में ही होगा। यही बात कल हम समझाए थे ना, है, यही बात हम समझाए थे ना कल। ये बात हम समझाए थे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस बात को समझना, इस पे आगे का पूरा तुम्हारा मिक्सचर बनेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, in a wine bottle there is 32% spirit, some quantity of the wine is taken out। बोल रहे कि एक स्प्रिट है, ठीक है, एक वाइन है, उसमें स्प्रिट 32% है और बाकी जो है वो वाटर होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि सम क्वांटिटी ऑफ द वाइन इज टेकन आउट, उससे हम कुछ क्वांटिटी निकाल ली। भाई अगर हम कुछ क्वांटिटी निकाल भी लेंगे ना, तो मेरे पास जो रिमेनिंग जो बचेगा, जो रिमेनिंग रहेगा जो मेरे पास, उसमें जो स्प्रिट होगा, उसमें जो स्प्रिट होगा वो फिर भी 32% ही होगा। बात समझ में आया कि नहीं, ये बात, इसी बात को समझना है। अगर हम उसमें से कुछ भी निकाले, रेशियो देखो, क्वांटिटी अमाउंट चेंज हो सकता है, क्वांटिटी और अमाउंट अलग चीज है, वो चेंज होगा। मीन्स लीटर है, आधा निकाल लिए तो आधा किलो बच गया, 1 kg है तो 500 ग्राम निकाले तो 500 बचा, जो कुछ भी अनुपात में मिला हुआ है, लेकिन उसका जो रेशियो है ना, मिश्रण का जो रेशियो है वो कभी चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। क्वांटिटी और अमाउंट में बदलाव होगा सिर्फ। फिर क्या कह रहे हैं, देखो, सम क्वांटिटी ऑफ द वाइन इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद अनदर टाइप ऑफ वाइन, ठीक है, अनदर टाइप ऑफ वाइन। तो ये जो स्पिरिट 2 है, दूसरे वाइन का जो स्पिरिट 2 लिख देते हैं, है ना, स्पिरिट 2, उसमें स्पिरिट कितना है, तो उसमें स्पिरिट है 18%, उसमें स्पिरिट कितना 18%, क्योंकि 18% का जो स्पिरिट है उसमें मिलाया जाएगा तो स्पिरिट का वो क्वांटिटी वही रहेगा। जब ये दोनों मिल करके आपस में फिर 28% का बना। अब यहां से उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4, 5 और 2। क्या बोल रहा था, ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है तो हमको पता है तरीका इसका निकालने का, इनिशियली माइनस, ये है क्या, ये तो रिमेनिंग था, लिखे थे, मेरा रिप्लेस वैल्यू था, ये मेरा रिप्लेस वैल्यू देखो 18% की तो डाले ना, उसके जगह पर माइनस रिप्लेस और विड्रॉ इज इक्वल टू रिमेनिंग। कल हम लोग पढ़े ये बात, ठीक है। तो हमको चाहिए क्या, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड आउट पार्ट ऑफ वाइन वाज टेकन आउट, कितना पार्ट निकाला गया, ठीक है। वो तो पार्ट टोटल से निकलता है ना, पार्ट हमेशा हम लोग का टोटल से निकलता है। गुड इवनिंग, है ना। तो इनिशियली रिप्लेस इज इक्वल टू रिमेनिंग, तो देखो रिमेनिंग कितना है, तो रिमेनिंग बचा है हम लोग का 5, है ना, रिमेनिंग बचा हम लोग का 5। रिप्लेस कितना किया जा रहा है,
रिप्लेस किया जा रहा है 2। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली हम लोग का 7 होगा। अब तुमसे फ्रैक्शन किसका पूछा है? रिप्लेस का। तो रिप्लेस है 2 अपॉन 7, है ना, 7 में 2। देखो 2% स्प्लिट, एक बॉटल में 32% स्प्रिट है, तो उससे कोई भी भाग निकाले, हम लोग को पता है कि रेशियो वही रहेगा, सिर्फ क्वांटिटी कम होता है, रेशियो में कोई बदलाव नहीं होता है। सम क्वांटिटी ऑफ वाइन इज टेकन आउट, कुछ क्वांटिटी निकालिए, निकालने के बाद भी ये जो स्प्रिट है हम लोग का, ये जो हम लोग का स्प्रिट है, ये इसमें अभी भी हम लोग का 32% ही स्प्रिट रहेगा। ठीक है, बचेगा कि हम लोग का क्या है, हम लोग का रिमेनिंग पार्ट है। रिमेनिंग पार्ट में जो स्प्रिट होगा वो 32% ही होगा। फिर क्या है इसमें, is taken out and replaced. Replace किससे कर रहा है? 1/3 of that quantity of another type of wine which contains 80% spirit. अब spirit 2 से हम एक्सचेंज किया, इस दूसरे स्पिरिट से एक्सचेंज किया जिसमें 18% जो है हम लोग का वाइन से एक्सचेंज किया जिसमें 18% हम लोग का स्पिरिट है, और इससे एक नया वाइन बना जिसमें 28% का स्पिरिट है ना। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा हम लोग का 4, और ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का रिप्लेस है। इसको अगर हम लोग काट दे तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, है ना। यहां से अगर हम लोग निकाले इनिशियली माइनस विथड्रॉ ऑब्लिक रिप्लेस इज इक्वल टू रिमेनिंग, है ना। तो रिमेनिंग कितना है भाई? 5, है ना। रिमेनिंग कितना हम लोग का? 5। इनिशियली हम लोग को तभी पता चलेगा जब हम लोग के पास विड्रॉ या रिप्लेस, क्या विड्रॉ और रिप्लेस जो 2 आया है हम लोग का स्प्रिट 2 में, क्या वो ओरिजिनल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक बात इसमें एक लाइन जोड़ दिया, रिप्लेस करा 1/3 ऑफ दैट क्वांटिटी विद अनदर टाइप, मींस 18% का जो आया हम लोग का, ये हम लोग का यूनिट वैल्यू आया। बात समझे? ये जो 2 आ रहा है ना हम लोग का, ये हम लोग का यूनिट वैल्यू है। ठीक है, 2 के हम लोग का, ये हम लोग का एक तरह से यूनिट वैल्यू है, और यहाँ पे विड्रॉ कितना कर रहा है? 1/3, है ना। विड्रॉ कितना कर रहा है? 1/3, और रिप्लेस क्या हो रहा है हम लोग का? 1 यूनिट इंडिकेट कर रहा है 2 को। देखो ये जो रिप्लेस वैल्यू आया है, रिप्लेस वैल्यू में 1 यूनिट इंडिकेट कितने को कर रहा है हम लोग का? 2 को, और ये कितना कर रहा है? 1/3, है ना। तो 1/3 के लिए क्या हो जाएगा? विड्रॉ 1 अगर 2 को कर रहा है तो 3 के लिए क्या हो जाएगा? 6। देखो इस बात को और बोलो। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि विड्रॉ कितना हो रहा है हम लोग का? 6। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हाउ मच पार्ट वाइन वाज टेकन आउट, तो इनिशियली कितना हो जाएगा? 11। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पार्ट कितना? पार्ट है 6, 6 कितना टोटल हम लोग का? 11। एक बार इसको देखना, थोड़ा सा नहीं समझ में आता तो फिर पूछना, फिर बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलो करते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। देखो 8 लीटर है, अभी 8 का 8 लीटर ये पूरा का पूरा मिल्क है। ठीक है, इसमें समझना है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, सिर्फ समझने का। इसमें जो पूरा का पूरा जो मिल्क है ना, वो सारा का सारा हम लोग का 80 लीटर है, पूरा का पूरा इसमें दूध है। अब क्या बोल रहा है, पहला प्रोसेस में क्या कह रहा है? फर्स्ट प्रोसेस में कह रहा है इसमें, फर्स्ट प्रोसेस हम लिख लिख के करें ताकि तुम लोग को समझ में आए। फर्स्ट प्रोसेस किया, फर्स्ट प्रोसेस में क्या किया कि इसमें से 8 लीटर जो दूध था, प्योर दूध, उसको निकाल लिया। तो इस कंडीशन में जब ये किया तो यहाँ पे 72 लीटर मिल्क बचा, 72 लीटर मिल्क रहा, और फिर वाटर भी बना इसमें, वाटर कितना? 8 लीटर, मीन्स 80 लीटर कभी नहीं बदलेगा, इस बात को ध्यान रखना। 80 का 80 हमेशा रहेगा, क्योंकि एक बर्तन से उस बर्तन को कर रहे हैं, है ना। दूध निकाल रहे, पानी डाल रहे, दूध निकाल रहे, पानी डाल रहे, तो पानी का तो अनुपात बढ़ेगा तुम्हारा, लेकिन ये दोनों जोड़ करके तुम्हारा 80 लीटर ही रहेगा। बात समझ लो, ये कम नहीं होगा। जैसे हम लोग क्या बोले थे कि एक स्पिरिट निकाले तो दूसरा मिला रहे, तो उसका स्पिरिट का परसेंटेज चेंज हो रहा है ना। स्पिरिट का या दूध पानी का परसेंटेज चेंज होगा, लेकिन जो अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट है वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा।
समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ पहले, ये बात जो बोले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब देखो, अभी 80 लीटर है, अब इस 80 लीटर में 72 लीटर मिल्क है और 8 लीटर वाटर है। हम दोनों को मिला के कोई अलग अलग बर्तन नहीं है। ज्यादातर स्टूडेंट ऐसा सोच लेता है एक ही बर्तन है, एक ही वेसल मेरे पास है, इसमें 72 लीटर अब मिल्क हो गया एंड 8 लीटर वाटर हो गया। अब समझो इस बात को। अब अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो इस कंडीशन में क्या हो गया, अभी एक मिक्सचर बन जाएगा, है ना। अब ये एक हम लोग का मिक्सचर बन जाएगा। अब हम लोग जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो मिक्सचर पर करेंगे। तो अगर हम तुमसे पूछे कि इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, तो तुम बोलोगे 72:8, मीन्स 9:1। कितना हो जाएगा? 9:1। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम फिर से इसमें से क्या करेंगे, अब फिर से इसमें से 8 लीटर मिक्सचर को निकाल लेंगे, है ना। इसमें से, इन दोनों में से 8 लीटर मिक्सचर को हम निकाल लेंगे। ध्यान से सुनना, 8 लीटर मिक्सचर को हम निकाल लेंगे। जब हम ऐसा करेंगे, 8 लीटर मिक्सचर को निकालेंगे, तो इस 8 लीटर को हम किस रेशियो में बांटेंगे? 9:1 में, 9 और 1 में बांटेंगे। 9 और 1 में बांटेंगे तो 8 इंटू 9 अपॉन का 10, तो ये कितना हो जाएगा? 9×72। एक मिनट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 7.2, ये हो गया हम लोग का सिर्फ मिल्क। और अगर हम वाटर का बात करें तो वाटर हो जाएगा 8 इंटू 1/10, मतलब 0.8। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से माइनस हो जाएगा कितना? 7.2 मिल्क, सिर्फ मिल्क, और इसमें से हम लोग का माइनस हो जाएगा 0.8 लीटर। बताओ ये बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो बोले समझ में आया कि नहीं? ये सेकेंड प्रोसेस हम लोगों का, ये हम लोगों का सेकेंड प्रोसेस, ये हम लोग का सेकेंड प्रोसेस रहा। बताओ समझ में आया कि नहीं? अब इसको माइनस कर दो, हो जाएगा हम लोग का 64.8, और ये हो जाएगा हम लोग का 0.8 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7.2। और करने वाला है क्या पता है, ये यही नहीं बन गया। यहाँ देखो, इन दोनों को जोड़ो, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो 8 लीटर कम होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम दूध मिक्सचर तो निकाल लिए, सेकंड प्रोसेस में मिक्सचर तो निकाले, उस मिक्सचर में इतना दूध इतना पानी था, लेकिन हम अगेन 8 लीटर उसमें डाले कि नहीं? क्या डाले? 8 लीटर पानी डाले, अगेन उसमें 8 लीटर हम पानी डाले, इसीलिए वाटर में फिर से 8 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 15.2, और 15.2 और 64.8 को जोड़ो, 80 लीटर होगा। एक बार देखो, एक मिनट देखो, कोई दिक्कत है तो पूछ। पहला प्रोसेस क्या हुआ कि 80 लीटर में प्योर दूध का एक बर्तन था, उसका पूरा कैपेसिटी 80 लीटर का था, उसमें से 8 लीटर प्योर दूध लेके वो घर चला गया, वो खत्म उसका काम। अब वो क्या किया, उसकी जगह 8 लीटर पानी मिला दिया, तो ये 80 लीटर की जगह 72 लीटर और 8 लीटर में बढ़ गया, मीन्स 72 लीटर दूध हो गया उसमें और 8 लीटर पानी हो गया। अगेन वो दूसरा प्रोसेस किया, क्या प्रोसेस किया कि 8 लीटर पूरा मिक्सचर में फिर से निकाला, लेकिन जब इस बार 8 लीटर निकलेगा तो पूरा दूध नहीं निकलेगा, क्योंकि अब उसमें पानी भी मिल चुका है, और ये दोनों 9:1 में, इसको करेंगे 9:1 में, इसे 8 लीटर को 9:1 में जब बांटे तो 7.2 और 0.8 आया, तो दूध का दूध में जोड़े, पानी का दूध का दूध में घटा, पानी का पानी में घटा दिया। लेकिन इन दोनों के घटने के बाद जो 8 लीटर वो मिक्सचर निकला, वो मिक्सचर बन गया। जब सेकंड प्रोसेस में उसको निकाला तो सेकंड टाइम फिर से वो 8 लीटर पानी डाला, इसीलिए इसको सिर्फ पानी में ऐड किया। एक बार इसको करके देखना खुद से कि हम कर रहे हैं, ऐसा सोच करके करना है। फॉर्मूला है तुम्हारा F इज इक्वल टू I 1 माइनस x अपॉन c पावर का n, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब एक एक करके इस बात का मतलब हम लोग देखते हैं, ठीक है। F का मतलब क्या होता है, I का मतलब क्या होता है ना? F का मतलब होता है यहाँ पर फाइनल अमाउंट, एफ का मतलब होता है फाइनल अमाउंट। इसका मतलब जो डाल के गिरा के जो जो कर उड़ करके लास्ट में जो दूध और पानी बचता है ना, वो उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल, एफ फॉर फाइनल अमाउंट। ठीक, अमाउंट मतलब क्वांटिटी, फाइनल क्वांटिटी भी बोल सकते हो या अमाउंट बोलो, एक ही बात है, ठीक है। फाइनल क्वांटिटी या फाइनल अमाउंट। अब आई क्या होता है, आई फोर हो जाएगा हम लोग का इनिशियल, मीन्स प्रारंभ में, स्टार्टिंग में कितना था, क्वांटिटी कितना था,
इनिशियली अमाउंट, जैसे यहाँ पे देखो इनिशियली कितना है 80 लीटर है, मींस वो जो कंटेनर है, वो जो वेसल है जिसमें टोटल अट रहा है, कितना अट रहा है 80 लीटर है, वही हम लोग का इनिशियल अमाउंट है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या पूछा जा रहा है, अगला पूछा जा रहा है एक्स। एक्स का मतलब होता है कि जितना निकाले, क्वांटिटी टेकन आउट एट अ टाइम। ठीक है, क्वांटिटी टेकन आउट एट अ टाइम, जैसे जितना क्वांटिटी कितना निकाल 8 लीटर, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा क्वांटिटी टेकन आउट एट अ टाइम। यहाँ पे कितना टेकन आउट करे 8 लीटर, तो क्वांटिटी टेकन आउट एट अ टाइम क्या हो जाएगा हम लोग का एक्स। उसके बाद हम लोग का सी है, सी क्या हो जाएगा मीन्स कैपेसिटी का रीजन। कई बार जो है ना, ये हम लोग का इनिशियली और ये सी, ये दोनों एक रहता है, ज्यादातर एक रहता है। ठीक है, लेकिन ये दोनों एक है नहीं, लेकिन ज्यादातर एक ही रहता है। क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा, ये कई बार अलग भी हो सकता है। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ जरूरी नहीं ना, इनिशियली में हो सकता है कि एक बर्तन है, उस बर्तन का कैपेसिटी कितना है, तो उस बर्तन का कैपेसिटी हम बोलते थे 50 लीटर, लेकिन स्टार्टिंग में जो तुमको मिल्क या वाटर कुछ भी दिया वो 40 लीटर दिया, कि उस बर्तन 50 लीटर का लेकिन है उसमें 40 लीटर क्वांटिटी, तो दोनों अलग हो गया। बात समझ रहे हो कि नहीं। 2 लीटर का तुम्हारे पास दूध का बर्तन रहता है, तो क्या डेली दूध 2 लीटर ला रहे, नहीं मान लो कि 1 लीटर लेके आते, तो बर्तन तो कैपेसिटी तो 2 लीटर का है, लेकिन इनिशियली कितना है उसमें 1 लीटर। ठीक है, बात समझे, बात समझे कि नहीं। तो सी फॉर कैपेसिटी ऑफ वेसल। ठीक है, जो वेसल होगा उसका जो कैपेसिटी होगा, और एन मतलब नंबर ऑफ रिपीटेशन, कि कितना बार निकाला, जैसे इसमें 2 बार है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिपीटेशन क्या हो जाएगा 2 टाइम्स एन फॉर नंबर ऑफ रिपीटेशन। यहां लिख देते हैं एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिपीटेशन, जितना बार निकाला गया, जितना बार इसमें फाइनल अमाउंट। हमको यहाँ से क्या निकालना, फाइनल मिक्सचर एफ निकालना है, तो एफ का तो एफ ऐसे ही रह जाएगा। आई फॉर इनिशियल, इनिशियली कितना है हम लोग का 80 लीटर, ये हम लोग का इनिशियली, तो 80 का 80 रह गया, 1 माइनस एक्स का मतलब, एक्स का मतलब एक बार में कितना निकालो 8 लीटर, 8 का 8 रह गया। अब इसमें देखो सी कंजम्पशन, कंजम्पशन ऑफ वेसल, जो वेसल है, सॉरी कैपेसिटी ऑफ वेसल, जो वेसल का जो कैपेसिटी वो कितना है, तो कैपेसिटी के बारे में कुछ नहीं बोला, बोला ए वेसल इज फुल ऑफ 80 लीटर ऑफ मिल्क, मींस जो वेसल है पूरा का पूरा दूध से भरा पड़ा हुआ है, और कितना दूध 80 लीटर दूध से भरा है, इसका मतलब उसका जो इनिशियली होगा, उसका जो इनिशियली होगा वही उसका कैपेसिटी हो जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं, बोल रहे कि पूरा भरा हुआ है और 80 लीटर भरा हुआ है, इस बात का मतलब क्या है कि फाइनल मिक्सचर 80 लीटर है, पूरा भरा हुआ है, इसका मतलब उसका कैपेसिटी भी 80 लीटर का है, तो यहाँ दोनों सेम है ना। और कितने बार ये हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो यहाँ स्क्वायर लगा दिया, तो एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा 80 इंटू, कैंसिल कर देंगे इसको, तो आ जाएगा हम लोग का 9/10 इंटू 9/10, 0 से 0 चला गया हम लोग का, जो हो जाएगा 9 8 एकम 8, 9 81 है ना, 81 81 81 81, ठीक है 64, और नीचे आ जाएगा हम लोग का 10, तो कितना हो जाएगा 64.8 लीटर। देखो आंसर है 64.8, 64.8 लीटर आया आंसर। पहले भी हम लोग का यही आया था, है ना, पहले भी हम लोग का ये आया था। अब देखो क्या ये सही आंसर है, ये सही तब होगा जब लास्ट में दूध बोलेगा, मिल्क बोलेगा, जैसे इसमें बोला कि फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क, और हमको पता है कि मिल्क प्लस वाटर इन दोनों को मिलाकर के 80 है। अगर मिल्क जो है मेरा 64.8 है, तो वाटर कितना है 15.2, तभी तो ये 80 बनेगा। बात समझ में आ रहा, अगर क्वेश्चन में वाटर पूछता तो तुम 15.2 लिखते। क्या हुआ हम लोग का f इज इक्वल टू इनिशियली 1 माइनस एक्स अपॉन सी एन। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट आफ्टर थर्ड प्लेसमेंट, मिल्क पूछ रहा है फाइनल, मतलब इनिशियली कितना है 50 लीटर है, 1 माइनस एक्स कितना है हम लोग का 5 लीटर निकाला जा रहा है, तो कंजम्पशन कितना, तो फ्रॉम द 50 लीटर ऑफ प्योर मिल्क 5 लीटर ऑफ मिल्क 50 ही है, कुछ नहीं लिखा है तो 50 ही रख गया। ठीक है, तो ये कितना टाइम्स हो रहा है 3 टाइम्स हो रहा है,
5 से 10 हो गया, और ये आ जाएगा F इज इक्वल टू 50 इंटू 9/10, 9/10 एंड 9/10, 3 बार क्यों भाई, इसीलिए 0 से 0 कट गया, 5 से ये 2 बार में 10। तो ये हो जाएगा हम लोग का 729, 729 ही होगा ना, ठीक है, डिवाइडेड बाय 20, 2 से डिवाइड कर दो इसको तो 2 दिया 6, 2 6 12 है ना, और ये हो जाएगा 2 चौके 8, 2 5 10, ये हो जाएगा हम लोग का 3636363669, हो जाएगा हम लोग का 36.4 लीटर, सही है ना, देख लो देखो 36.4 आ रहा है, 36.45 मतलब, ठीक है, ठीक है। अब अगर तुमसे यहाँ पूछ लेगा वाटर तो क्या करेंगे, तो देखो टोटल है 50, टोटल है 50 और ये हम लोग का 36.45, अगर हम माइनस करें तो ये हो जाएगा हम लोग का 5 5 कुछ गलत हो रहा है क्या, 36.45 हम लोगों का 36.45 आ रहा है ना, ठीक है, और ये आ जाएगा एक चला गया, एक 30.55 जो है फिर वाटर हो जाएगा हम लोग का, टैंक ऑफ पेट्रोल विच कंटेन 200 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है, कितना है भाई 200 लीटर, कितना निकाल हुआ इसमें 40 लीटर, कितना बार 4 बार, अरे लीटर होगा 4, कितना लीटर का है, वही होगा तब 200 ही होगा 5 बार, तो ये हो जाएगा हम लोग 200 इंटू माइनस करेंगे तो 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 एंड इंटू 4/5, 25 है 200, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16 2, ये हो जाएगा हम लोग का, यहाँ देख यहाँ 2 को 2 है, 4 को 2, 6 को 2, 6 2 8 को 8 को 2 है ना, तो 2 का पावर 8, 2 का पावर 9 होता है 512, तो 2 का पावर 9 अगर 512 है तो ये हो जाएगा हम लोग का 512 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 25, देख लेना कैलकुलेशन सही है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 5 चौके 20 डिवाइड बाय 25, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे 25 8 है 200, 4 आएगा 0 80 40 48, 204 8 200 ना, हो जाएगा 4, फिर 8 लेंगे तो 1, तो 23.0 लेंगे तो 230, 230 अगर है 8 बार में 200 तो 9 बार में 225, 5 25 81.92 लीटर है कि नहीं देख लो, 81.92 लीटर है या नहीं है, 81.92 लीटर, देखो 81.92 लीटर यहाँ बात हो रहा है 200 लीटर ऑफ पेट्रोल का, ये पेट्रोल का है, लेकिन क्वेश्चन में पेट्रोल नहीं बोल रहा है, बोल रहा है तो टोटल अमाउंट ऑफ केरोसिन इज द मिक्सर, पूरे मिक्सर में केरोसिन कितना है, पेट्रोल हमको पता है 81.92 लीटर है, तो केरोसिन कितना हो जाएगा, टोटल कितना है, टोटल हम लोग का 200 लीटर है ना, लीटर, इसमें हम लोग का पेट्रोल कितना है, पेट्रोल कितना है, पेट्रोल हम लोग का 81.92, तो जो आएगा वही तो हम लोग का केरोसिन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 9 का 9 0, 9 में से 1 8, 1 1, 118 118.08 लीटर, 118.08, इसी फॉर्मूला से बनेगा सेम, F इज इक्वल टू आई 1 माइनस आर एक्स था, एक्चुअली आर भी लिख लेके कई बार बताया ना, इसीलिए सी और का है, देखो क्या कह रहा है, a jar was full of milk, a person used to do 20% of the milk, 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हम लोगों का 1/5,
ठीक है, 20% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/5। आगे देखो क्या कह रहा है, द मिल्क फ्रॉम द जार एंड रिप्लेस्ड विद शुगर सॉल्यूशन, ही वाज रिपीटेड द सेम प्रोसेस 4 टाइम्स, 4 बार किया, ठीक है, एंड thus there was only 512 ग्राम ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द जार। इसका मतलब जो हम लोग का बचा हुआ है वो कितना है 512, मींस फाइनल। ये 512 क्या है, ये हम लोग का फाइनल है, पर आई अब तुमको निकालना है, ठीक है। ये है एफ, आई का आई ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस। अब देखो एक बात बताओ कि 20% ऑफ मिल्क, इसका मतलब है कि एक अगर मिल्क है तो 5 क्या है, 5 उसका कैपेसिटी है। यहाँ पर ऐसे मानो फ्रैक्शन में कि एक अगर मिल्क है तो 5 क्या है उसका, 5 उसका कैपेसिटी, कैपेसिटी अलग से नहीं है, यही पूरा का पूरा कैपेसिटी है 5। अब यूनिट में ही दोनों, मीन्स 5 है, ठीक है, 5 में एक है ना, 5 में एक, इसका मतलब कि ये कितना हो जाएगा 1/5, ये कितना बार हो रहा है 4 बार। उम्मीद करते समझ में आया होगा। आई इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5, 4/5, 4/5 एंड 4/5। अब देखो ये टोटल में दो जो है 8 बार है, 512 में दो जो है 9 बार होता है, तो ये और ये कट गया, दो एक बार बच गया, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 25 125 25 625, 625 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 1250, इनिशियली आ जाएगा 1250 केजी कर देना उसको, क्योंकि आंसर किसमें दिया हुआ क्वेश्चन में 512 ग्राम है ना, हाँ, तो इसको केजी कर देना। फिर हम लोग का फॉर्मूला तो ये है कि F इज इक्वल टू आई, ब्रैकेट में तो 1 माइनस एक्स अपॉन सी पावर है। यहाँ पे क्या हो गया, वहां पर तो ये तब होता जब एक ही अमाउंट निकाला जाता, एक ही अमाउंट डाला जाता, अब यहाँ पर अलग अलग अमाउंट निकाला डाला जाता, तो जितना बार बोलेगा उतना बार हमको लिखना पड़ेगा। जैसे एफ है, एफ एक बार ही होगा, आई है, ये चेंज हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन सी, ठीक है, दूसरा हो जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन सी, तीसरा हो जाएगा 1 माइनस जेड अपॉन सी, ये चलता रहेगा जितने तक रहेगा, ठीक है। एक तरीका ये, इसका और भी तरीका है, जब प्रैक्टिस करवाएंगे ना तब बताएंगे, बिंदु बिंदु पॉइंट पॉइंट लेके बनाते हैं, वो भी बताएंगे, ठीक है। देखो कितना है, रीजन इज फुल ऑफ 63 लीटर ऑफ मिल्क, कितना है ये भाई 63, तो 1 माइनस एक्स, एक्स का पहला वैल्यू क्या है हम लोग का 9 लीटर, 9/63, दूसरा 1 माइनस 7/63, और तीसरा है नहीं, दो ही दिया है तो दो तक ले लेंगे, ठीक है। 9 से 7 बार में, 7 से 9 बार में, कितना आ जाएगा हम लोग का 63 इंटू 7 1 9, 7 हो जाएगा 2/7 इंटू, ये हो जाएगा हम लोग का 2/9, 9 7 और 30 कट गया। कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। 63 liter of milk will be taken out, 7 liter of mixture is taken out and replaced with same amount। अच्छा 8 होगा ना, 7 9 1 9, 8 हो गई है वो, 7 1 6 होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 48 लीटर। हम ना ऊपर वाले काट के उसके बाद आता है कि फॉर्मूला F इज इक्वल टू इसका I 1 माइनस एक्स अपॉन सी करेंगे, ठीक है। तो फाइनल मिक्सचर रिमेन बच रहा 9%, तो 9% है तो 9 का 9/100 लिखेंगे फाइनल में। आई का कितना है हम लोग का, ऑक्सीजन इज 36 पर 25 लीटर ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर 25 लीटर का, लेकिन ऑक्सीजन है 36, तो 36/100, 1 माइनस एक्स, एक्स मतलब होता है हम लोग का, एक्स तुमको निकालना है, ठीक है, और सी हम लोग का 25, कितनी बार ये हुआ है, द मिक्सचर टेकन रिप्लेस प्रोसेस रिपीटेड वन मोर टाइम मींस 2। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ, यहाँ तक ये बात समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर ऑक्सीजन या उसका नहीं, खाली बोला है कि सिलेंडर 25 लीटर का, इसका मतलब अब देखो कैपेसिटी हो 25 लीटर का, लेकिन उसमें अब कह रहा है कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी 36% ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर 36% है, मींस इसमें ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी,
बात समझ में है? और ये क्या हम लोग का बच रहा है, एट द एंड ऑफ ऑक्सीजन बच रहा है 9%। क्लियर है या नहीं है बोलो, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो इसको क्या करेंगे ना, बोथ साइड जो है रूट कर दो। ये तो 100 तो पहले ही कट जाएगा। तो देखो अगर हम ऐसा करते हैं, 9 भी काट दो, 4 हो गया। अगर रूट करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, पर यहाँ पर ये आ जाएगा 2। और इसको अगर हम सॉल्व इसको करते हैं तो 1 माइनस एक्स अपॉन 25। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 2.5 लीटर आएगा। को देख लेना, तो 2 नहीं होगा, 25 तो x 12 होगा, 12 होगा। तो इसमें एक बात समझना मेरा, कि अगर इंड का बात कर रहा, ठीक है, इंड का बात कर रहा है और कह रहा है क्वेश्चन में कि मिल्क और वाटर जो है इसका रेशियो है 16:9। इसका मतलब स्टार्टिंग में भी तो यही होगा, क्योंकि हम बोले रेशियो नहीं बदलता है, मिल्क और वाटर फिर भी यही रहेगा, रहेगा कि नहीं? और दोनों को मिलाकर ये कितना रहेगा हम लोग का, 25 रहेगा। होगा कि नहीं होगा, ये बात बताओ। अगर इंड में है, स्टार्टिंग में भी तो सेम रेशियो रहेगा, यही ना बताए थे, क्वांटिटी चेंज होता है, रेशियो चेंज नहीं होता इनका, मिक्सचर का। मतलब दोनों का अगर जोड़े तो स्टार्टिंग में 25 होगा। यहाँ बैठा दो, तो बैठा दें यहाँ पर। फाइनल कितना आ रहा है हम लोग का मिल्क, फाइनली मिल्क है 16, इनिशियली कितना 25, 1 माइनस एक्स, कितना बार क्या निकाल हुआ, क्या डाल हुआ हम लोग का, 15 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन, 15 निकाल हुआ है ना, और सी हमको चाहिए, 15 निकाल हुआ और सी ही हमको चाहिए। और ये कितने बार कर रहा है टोटल, वंस मोर, 2 बार कर रहा है ना। और कुछ है इसमें, क्या करो, बहुत साइड जो है रूट कर दो। ऐसा अगर हम करते हैं तो ये 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हम लोग का 5, और ये हम लोग का 1 माइनस 15 अपॉन सी। अब इसको कैलकुलेट करके देखो, सी इज इक्वल टू कितना है, 75 लीटर आएगा। तुम लोग भी देख लेना कैलकुलेट करके, 75 लीटर आना चाहिए। ये होगा ही नहीं, इसका मतलब इनिशियली और कैपेसिटी सेम ही रह जाएगा, मीन्स कैपेसिटी जो निकालेंगे वही इनिशियली हो जाएगा। ठीक है, देखो फॉर्मूला हमको पता है कि फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू आई 1 माइनस एक्स अपॉन सी पावर का है। तो एफ फाइनल क्या हम लोग का, फाइनल हो जाएगा हम लोग का, इसमें क्या पूछा है, थिएटर का रेशियो। ठीक है, तो फाइनल हो जाएगा हम लोग का 343, इनिशियली कितना हो जाएगा 343 और 169, ये रेशियो स्टार्टिंग में भी होगा, इसको जोड़ेंगे तो 9 3 12 तो 512, इनिशियली हो जाएगा हम लोग का 512, 1 माइनस एक्स कितना निकाल हुआ 50 लीटर, डिवाइड बाय सी पावर का एन, एन क्या हो जाएगा 3। तो क्या करो, क्यूब बन गया, यहाँ पे भी रूट क्यूब लगा दो और यहाँ पे भी हम लोग का रूट क्यूब लगा दो। तो ऐसा करते तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा हम लोग का 8, है ना, और ये हो जाएगा 1 माइनस 15 अपॉन सी। इसको सॉल्व करोगे तो 120 लीटर है। फ्रैक्शन क्या दे रहा है, फ्रैक्शन दे रहा है 71, 3/7%, क्या हो जाएगा इसका 5/7। इसका मतलब ये क्या, ये ए है और ये सी है ना, सी का बोलो, तो जिसका बोलते उसका नीचे वाला रहता है, ये बात हमको पता है। अब ए और सी का अगर हम देखें तो ए और सी का परसेंटेज, ए का दिया है 12%, सी का दिया 18%। इन दोनों का जब डिफरेंस देखेंगे तो ये 6 है। इस 6 को 5 और 7 में बांट देते हैं हम लोग, अगर ये हो जाएगा 6 इंटू 5/12 और ये हो जाएगा 7 इंटू 5/12। तो ये इसको 2 बार में आ जाएगा हम लोग का 2.5, बचेगा कितना फिर हम लोग का, जो बचा वो हो जाएगा हम लोग का 3.5। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई एक ऐसा वैल्यू आएगा, 5 और 7 रेशियो में है, जिससे कि यहाँ पर मेरा होगा 2.5 और यहाँ होगा मेरा 3.5। ये चीज हम बहुत क्लियर बताए तुम लोगों को।
इसका मतलब ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का 15.5। तो ये जो 15.5 क्या है, ये 15.5 जो हम लोग का, ये 15.5 जो हम लोग का ये कंबाइन ए और सी का है। अब देखो कि हम लोग का टोटल अमाउंट है 65,000। इस 65,000 को बांटा जाएगा, हम ले लेते बी और ए प्लस सी। ठीक है, तो बी का क्या परसेंट है, तुम बोलोगे 16%, है ना। अब तुम लोग गाय गधा बकरी वाले याद करो, जो कॉन्सेप्ट बताए थे। ये है 15.5%। हम क्या करेंगे, इस पर भी 16% निकाल देंगे, है ना। इस पर भी 16% निकाल देंगे। अगर इस पर भी टोटल हम 16 ले लेते, यहाँ भी 16 ले लेते, इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे एक्स्ट्रा हम 0.5 लिए है, 0.5 हम एक्स्ट्रा लिए है, तो सबसे पहले टोटल 16% कैलकुलेट करो। तो अगर 65,000 का 16% अगर हम ले ले तो 0 से 0 कट जाएगा, 16 0, 16 का 0 8, 16 96, 96 एंड 400, 104, कुछ ऐसा आएगा 10,400, 10,400। और एक्चुअल इंटरेस्ट हम लोग का 10,180। तो ये जो 10,180 है ये कम है, कम इसीलिए क्योंकि हम 0.5 ज्यादा चार्ज किए, इसीलिए मेरा ज्यादा है। अगर हम माइनस कर देते आ जाएगा मेरा 0 2 और ये आ जाएगा 2, है ना। नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है 2 आएगा। तो ये हो गया हम लोग का 220। ठीक है, ये हो गया हम लोग का 220 होने का रीजन क्या है, सिर्फ इतना है कि 0.5 हम लोग जो है इसमें एक्स्ट्रा चार्ज कर दिए। ठीक है, 0.5 से हम लोग एक्स्ट्रा चार्ज कर दिए। तो 0.5 किसके अकॉर्डिंग, ए प्लस सी के। तो ए प्लस सी पे जो है 0.5 मीन्स 1/2 इक्वल होगा किसके, 220 के। इसका मतलब हो गया कि ए प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 440। सही है कि नहीं, तो देखो रिक्वेस्ट को, ए प्लस सी 440। अच्छा, परसेंट है ना, तो 100 भी लिखना था, जो 100 नहीं लिखे, यहाँ पे एक 100 ही होता। तो 100 होगा तो हम लोग को 2 0 और बच जाएगा, और क्या 44,000। ठीक है, क्योंकि 0.5% है ना, 0.5% है, तो 5 का तो 1/2 लिख सकते, तो परसेंट के लिए 100 भी आएगा। मीन्स ए प्लस सी का जो इन्वेस्टमेंट है वो है हम लोग का 44,000। तो 65 से 44 को 21,000 होगा। 20% का बात कर रहे हैं, तो 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हम लोग का 1/5 इन्वेस्टेड इन बैंक ए इज 20% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन सी। इसका मतलब ये ए है, ये तो सी है हम लोग का। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें ए और सी का, तो ए का है 15 और सी का है 27, और रेशियो आ रहा है इसका 1 और 5। इन दोनों का जो अंतर हो कितने का है हम लोग का, 7 का ना, 5 20, 5 25 12 का है। तो इस 12 को हम लोग बांट देंगे किसमें, 1:5। ऐसा करते तो 5 1 6 2 12, ये तो एक किलो हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। इसका मतलब ये 2 है, ये हम लोग का 10 है। इसका मतलब ओवरऑल परसेंट है 25। ये क्या हम लोग का, ये हम लोग का ओवरऑल परसेंट है, ओवरऑल परसेंट। दिक्कत इस बात पे कोई, इस बात पे कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक किसी को भी। ठीक है, अब क्या कहता है कि हम लोग का जो है अमाउंट ये है 80,000। इस 80,000 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो बी है, और ये हम लोग के पास ए प्लस सी है। बी का अगर अकेला परसेंट देखें तो बी अकेले 16% है ना। और ये हम लोग का आ रहा है ओवरऑल मीन्स ए प्लस सी का मिलाकर आ रहा है 25%। कोई बात नहीं है, तो हम क्या करेंगे ना, 16% ही निकालेंगे। 25% में से कितना माइनस करेंगे, 16% हो जाए हम लोग का, तो 9 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 16% टोटल चार्ज हम लोग 16% ही करेंगे, तो जाहिर सा बात है कि कम ज्यादा होगा ही उसमें। तो ठीक है, अमाउंट कितना हम लोग का 80,000 ना, इसी टॉपिक। तो अगर हम निकाले 80,000 80,000 25%, एक्चुअल इंटरेस्ट क्या जाएगा 36,400। देखो 36,400 ये 2 साल का है, तो 1 साल का हमको कैलकुलेट करना है 18,200। बताओ इस बात पे किसी को दिक्कत है, कैलकुलेशन सही नहीं किया है। 80,000 का 16% ना,
0 16 0 16 85 16 16 8 कितना आ जाएगा 12,800। और टोटल इंटरेस्ट हम लोग का क्या शो कर रहा है? टोटल इंटरेस्ट हम लोग का शो कर रहा है 18,200। ये टोटल आ रहा है 18,200। इसमें 12,800 अगर हम माइनस कर दे 0 0 0 हो जाएगा 12 में 8 गया 4 7 में से 2 गया 12 में 8 गया 7 में 5 5400 आ रहा है। पर ये 5400 पता है ये 5400 हम लोग का ए प्लस सी का 9% है जो हम कम चार्ज किए। ए प्लस सी का 9% जो हम कम चार्ज किए क्योंकि ए प्लस सी का हम 16 लिए। इसका मतलब 60 जब ओवरऑल ले रहा है तो ये तो ठीक है तो इसमें 9% कम चार्ज किए वही 9% डिफरेंस है। 9 से काट देंगे तो 9 54 600। इसका मतलब ये हुआ ए प्लस सी का जो इन्वेस्टमेंट था वो था 60,000। इसका इन्वेस्टमेंट है 60,000। इसका इन्वेस्टमेंट हम लोग का 20,000।